Good morning students, how are you all? I am Pankaj Mishra, your maths teacher, here again with a new video on maths class. Students, as you all know, we have already started with this chapter, that is your linear inequation. I have uploaded one video already on this chapter. I hope you all have gone through that video in which I have explained you the basic of that chapter, that is linear equation, how it is different from linear equation, and I have solved some of the questions for you today. In addition with that, I'll be solving some of the questions from the exercise so that you can complete the exercise. Okay, so let's start with the video. So the first question for today is, solve the following inequation and represent the solution set on the number line. The inequation is given to you, -3 less than -1/2, then -2x/3 less than equal to 5/6 and x belongs to real number. This question was there in 2010. ठीक है, 2010 में ये वाला क्वेश्चन आया था. So how to solve this question? First of all, we'll get the solution of this and then after we'll represent this on the number line. So for that, what we'll do, we'll draw a line in between. First we'll take these two, -3 less than -half -2x/3. We'll shift x to the right side. This will be 2x to the left side, sorry, and this will be -1/2, then plus 3. On solving this, we'll get 2x/3 less than, this will be 2, LCM आएगा, -1 plus 6. This will be 2x/3 less than 5/2. So this will be x less than 15/4. First solution will be x less than 15/4. Now on solving this, we will get -half -2x/3 less than equal to 5/6. So this will become -2x/3 less than equal to 5/6 plus half. This will be equal to -2x/3 less than equal to 6. This will be 1 plus 2 3 जा 6, 3 आ गया, -2x/3 less than equal to 8/6. This will be 3 2 जा 6, ठीक है, and 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये वाला है ना, ये 4 हो गया, 4 2 जा 8, एंड साइन चेंज कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो x greater than equal to -2. This will be your final answer. So we have got the solution. One value is less than 15/4 and one is greater than -2. So the solution set will be equal to x greater than equal to -2 and less than 15/4. This will be your answer. ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं बेसिकली. एंड हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन. तो नंबर लाइन के लिए जस्ट हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन. ठीक है, एक लाइन हमें बनानी पड़ेगी. ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है, 0 हो गया बीच में. दिस विल बी 1 2 3 4. 15/4 will be approximately 3 point something. ठीक है, 3.4 12, कितना आ जाएगा, 3 7.5 ऐसे लगभग आ जाएगा. तो 3 यहाँ पे हम ले लेते हैं 15/4. ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल करेंगे लेकिन इसको डार्क नहीं करेंगे. एंड -1 -2 से बड़ी वैल्यू, मतलब यहाँ पे एक सर्कल करके डार्क कर देंगे और ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा. सोल्यूशन सेट पे रिप्रेजेंट करने के लिए बस यही ध्यान देना है कि अगर इफ इट इज ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू तो वहां पे डार्क करना है सर्कल को, एंड इफ इट इज लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है तो केवल यहाँ पे एक सर्कल बना के छोड़ देना है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व. ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा इंटरसेक्शन और यूनियन या नेगेशन वाला बता देता हूँ. ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा. सो I'll take one question. Question is, if P is the solution set of, question है आपका, if P is the solution set of equation है आपकी -3x plus 4 then less than 2x minus 3 and x belongs to n, and Q is a solution set of 4x minus 3 less than 4x minus 5, sorry, it is 5 less than 12 and x belongs to
x बिलोंग्स टू W, ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड P इंटरसेक्शन Q एंड Q माइनस P. वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन, ठीक है. अब देखिए हमें क्वेश्चन जो यहाँ पे सॉल्व करना है, तो फर्स्ट विल सॉल्व दीज इन इक्वेशन, ठीक है. पहले हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पे x वाले को विल शिफ्ट दिस साइड, ये x बिलोंग्स टू n है, ठीक है. तो इधर आएगा, दिस विल बी -3x माइनस 2x लेस देन -3 माइनस 4. दिस विल बी -5x लेस देन -7, ठीक है. तो x ये कैंसिल होगा तो ग्रेटर देन 7/5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी 1.4. 5 × 5, 5 4 20. अब ये हमारा सोल्यूशन आया, लेकिन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो सोल्यूशन सेट P क्या हो जाएगा, 1.4 से बड़ा नंबर होगा 2, 3, 4, 5 शो ऑन, ठीक है. ये हमारा क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है. नाउ हियर इन केस ऑफ W, दैट इज योर होल नंबर, सॉल्व करेंगे. 4x लेस देन 12 + 5, 4x लेस देन 17, x लेस देन 17/4. तो दिस विल बी 4 पॉइंट समथिंग, और होल नंबर है तो Q का आंसर हो जाएगा 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, और 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 4 को भी ले सकते हैं. तो ये आपका आंसर हो गया. अब आपको क्वेश्चन में पूछा है P इंटरसेक्शन Q. P इंटरसेक्शन Q का मतलब ऐसे नंबर जो P में भी हो और Q में भी हो. तो ऐसे नंबर जो P में भी हो और Q में भी हो, P में भी हो और Q में भी हो. तो 2 3 4, तो आंसर विल बी 2 3 4. सेकेंड वन इज Q माइनस P. ऐसा नंबर जो Q में हो लेकिन P में ना हो, ऐसा नंबर जो Q में हो लेकिन P में ना हो. तो Q और P में 0 और 1 है, तो दिस विल बी 0 एंड 1. और अगर क्वेश्चन में यूनियन पूछा होता तो सारे नंबर आ जाते, 0 1 2 3 डैश. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व. अगर आपको कोई पूछ ले क्वेश्चन में कि अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इंटरसेक्शन पूछ ले, यूनियन पूछ ले, नेगेशन पूछ ले, या इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है. मेरे ख्याल से आप इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे इजीली. अब हम लोग थोड़े से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं. जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ. बाकी क्वेश्चंस के पैटर्न तो मैंने आपको बता दिए, लास्ट वीडियोस में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे. सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, एंड इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यू आर फ्री टू आस्क मी. ओके. सो द क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर which is such that if 7 is added to its double, the resulting number becomes greater than 3 times the integer. यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए जिसमें 7 अगर ऐड करें 2 टाइम्स में तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा 3 टाइम्स द इंटीजर. क्वेश्चन आपका देखिए क्या है. क्वेश्चन में बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको मानना है, तो लेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर बी x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए. क्वेश्चन में बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उसका डबल कर दीजिए और उसमें 7 ऐड कर दीजिए, तो वो 3 टाइम्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा. सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन -7. सॉल्व करेंगे x माइनस x हो जाएगा ग्रेटर देन -7, तो x लेस देन 7. अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि x लेस देन 7 और ग्रेटेस्ट इंटीजर आपसे पूछा गया है, ठीक है. तो अब बताइए लेस देन 7 से ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, 6 ही होगा. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम बेस्ड टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जस्ट ट्राई टू मेक द इन इक्वेशन एंड देन सेम तरीका है, यू हैव टू सॉल्व द इन इक्वेशन, ठीक है. एक तो क्वेश्चन और है, हम लोग देख लेते हैं. 1/3 ऑफ द बम्बू बोल इज बरीड इन अ मड एंड 1/6 ऑफ इट्स इन वाटर. ठीक है, 1/3 जो है वो मड में है, 1/6 वाटर में है, एंड द अबव पार्ट ऑफ द वाटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. क्वेश्चन में बोला है कि अबव पार्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है. फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट वन, ये पूछा गया है आपसे. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी. अब कुछ मड में है, कुछ पानी में है, तो हमें टोटल लेंथ तो पता नहीं है. ठीक है, तो हमने क्या करना है, लेट द लेंथ ऑफ द बम्बू, लेट द लेंथ ऑफ बैम्बू बी x मीटर. ठीक, अब ध्यान से देखो, वाटर वाले में कितना है, वाटर वाले में कितना है 1/3, तो दिस विल बी x/3.
वाटर में 1/6 है, सॉरी, इट इज 1/6। मड वाले में कितना है, 1/3। तो कितना रिमेनिंग बच गया, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। तो x माइनस क्या हो जाएगा, x/3 प्लस x/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यही तो बोला है क्वेश्चन में। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x/3 माइनस x/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम विल बी 6, ये 6x आया, माइनस 3 2 6 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये आ जाएगा आपका 3x अपॉन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो बताइए शॉर्टेस्ट लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बोल रहा है और इक्वल टू भी है, तो शॉर्टेस्ट तो 6 ही हो जाएगी ना। अब ग्रेटेस्ट तो बहुत सारी हो सकती थी, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है, सो विल से कि 6 जो होगी वो उसकी शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज lecture. Just go through my video. You can go through my previous videos also. Those who have seen this video of this chapter for the first time, just go through my previous video also, so that you can get the basic of the chapter. Because basic आपको समझ में आएगी तभी आपको ये वाली भी क्वेश्चन समझ में आएंगे. So just try to solve the remaining questions that I have not discussed in this video. Okay, because that questions are for you. Just go through that questions, try to solve them. अदरवाइज हम तो हैं ही आपको सारे क्वेश्चंस आपको बताने के लिए. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.